and who because of this ignorance or involved in a material condition ये अभी शुरू कर दिया ऑलरेडी full of miseries ऑलरेडी शुरू है obtain the chance to meet the Lord's devotee. ये ब्लॉक है I accept that Supreme Personality of Godhead as a Supreme Spiritual Master. Offered by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is Krishna. the Supreme Spiritual Master. The Supreme Lord knows everything about the suffering of the conditioned soul, and therefore He appears in this material world, sometimes personally, sometimes by incarnation, and sometimes by authorizing a living being to act on his behalf. In all cases, however, He is the original spiritual master who enlightens the conditioned soul who are suffering in this material world. Lord is always busy in the conditioned soul in many ways. Therefore, He is addressed here as Paramo Guru Bhavan, the representative of the Supreme Personality of Godhead, who acts to describe Krishna consciousness, is also guided by the Supreme Lord to act properly in executing the Lord's order. Such a person may appear to be an ordinary human being, but because he acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Spiritual Master, he is not to be neglected and ordained. We therefore say, Acharyam Mam Vinyan. An Acharya who acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead should be understood as good as the Supreme Lord himself. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भावेन निवसति किंतु प्रभो तस्य वंदे गुरुचरणारविंदं. Vishwanath Chakravarti has advised that spiritual master acting on the Supreme Lord's behalf must be worshipped as being as good as the Supreme Lord, for he is the Lord's most confidential friend. In broadcasting the Lord's message for the benefit of the conditioned souls involved in the material world. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो वैष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी भाषातिदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. We are in the 8th canto, 24th chapter and 46th shloka. Shri Rajo Uvacha Anadi Avidyo Ubhatatma Samveda Tanmula Samsara Parishama Turaha Yadichaya Prishta Yam Apanuyo Vimukti Dona Paramon Gurur Bhavan. The king said, by the grace of the Lord, who have lost their self-knowledge since time immemorial and who, because of this ignorance, are involved in a material conditioned life full of miseries, obtain the chance to meet the Supreme, to meet the Lord's devotee. I accept the Supreme Personality Godhead of the Supreme Spiritual Master. So this is the fortune of Satyavrata. सत्यव्रता को बहुत फायदा है, उसके सामने खुद भगवान है और वो भगवान को पकड़ पाए, वो समझ पाए भगवान आ गए. इसी तरह ये समझना है कि मेरे सामने एक शुद्ध भक्त है, वो भी आसान नहीं है, कृष्ण का कृपा है. जब प्रभुपाद जी भारत में थे, चिपीवाड़ा एक छोटा सा
जगह है, और उस जगह में मतलब वो चांदनी चौक का एरिया है, इतना भीड़ है कि हम लोग मतलब सबसे ज्यादा भीड़ की जगह वही है, लाखों लोग घूम रहे हैं, करोड़ों का धंधा हो रहा है। और प्रभुपाद जी उधर थे, और जितना टाइम प्रभुपाद जी ने किसी मंदिर में स्पेंड किया उससे ज्यादा उधर स्पेंड किया। ये कैलकुलेशन भी निकाली गई है ना। और राधा दामोदर वृंदावन में भी टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जितना टाइम उधर स्पेंड किया उतना कहीं नहीं किया। तो मतलब सबसे ज्यादा लोग को प्रभुपाद जी को उधर मिले, लेकिन एक आदमी जान नहीं पाया, ये शुद्ध भक्त है, एक आदमी। तो ये एक बारी में मेरे को ये याद है, कोई भक्त से मैं डिस्कस कर रहा था, तो बोलता है इस चीज को क्या सोचना है कि हमको एक क्वालिफाइड गुरु चाहिए, वो तो मिल गया ना, अभी हमको क्वालिफाइड डिसाइपल बनना है। तो एक किताब है स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल इस्कॉन में, जितने गुरु शिष्य के जितनी शिक्षा दी है सब इकट्ठा करके रखा उसमें। तो बहुत अच्छा बच्चा था, खाली 18 साल का मंदिर में ब्रह्मचारी बना था। और जब मैंने उसको किताब दी, मैंने किसको पढ़ ले, नहीं पहला चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइड गुरु वो तो मिल गया, अब मेरे को क्वालिफाइड डिसाइपल बनना है। एक्चुअली दैट इज ट्रू, अगर उधर हम फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कृष्णा विल इंश्योर दैट वी गेट गाइडेंस फ्रॉम अ क्वालिफाइड गुरु। जस्ट लाइक आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने, तो क्या निर्भर करता है आपके पास कितना पैसा है, हर चीज के तो आपको अलग अलग रेट का मिल जाता है ना, अपना कैपेसिटी के हिसाब आप ले सकते हैं। तो सिमिलरली शुद्ध भक्त इतना आसानी से नहीं मिलता, आपका कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आपका दिल में काम बहुत प्रबल रूप से तंग कर रहा है तो आपको शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा। शुद्ध भक्त मिलना आसान नहीं है, उसमें मिलेगा भी तो विश्वास नहीं होगा। तो दिस इज रेयर। सत्यव्रत तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उसके सामने डायरेक्टली भगवान आ गए। ठीक है, थोड़ा बुद्धि तो था उसके पास, बिना बुद्धि के तो नहीं होता। जैसे कल डिस्कस कर रहे थे, पहले भगवान ने उसको सेवा ले ली, उसके कमंडलों में आ गए, थोड़ा उसको बोला, उसके एक्चुअली वो पानी ले रहा था भगवान की सेवा के लिए। जैसे मंदिर में बहुत जगह ऐसा है कि इस नदी या कुएं में लोग पानी इकट्ठा करते हैं और कभी कभी किलोमीटर भी चलते हैं। प्रभुपाद जी बहुत जगह नोटिस कर रहे थे ये सब, उनका उनका वही एक सेवा है, मंदिर के लिए शुद्ध पानी सुबह सुबह ले आते। तो एनीवे, तो वो भी पानी इकट्ठा कर रहा था नहाने के बाद मंदिर ले जाने के लिए, अपनी पूजा के लिए। और उसमें एक मछली आ गई, तो उसने बाहर फेंका, फिर आ गई, फिर फेंका, फिर आ गई। और फिर मछली उसको बोली, अरे क्यों फेंक रहे हो, मेरे को सुरक्षा दो ना। तो राजा की मूड में था, ओके देता हूँ, आ जाओ। तो अब फिर उसके बाद वो मछली बड़ी हो गई और उसको बोला, भाई इतने बहुत छोटा है कमंडलू, थोड़ा मेरा साइज बहुत बड़ा है। उसको कुएं में डाला, फिर भर गया, फिर उसको नदी में डाला, फिर भर गया, तो समुद्र में डाला, और कितने मतलब हजारों माइल का साइज ले लिया। और इतना तो था, उसके दिल में इमीडिएटली उत्पन्न हो गया, मेरे भगवान आ गए। तो सिमिलरली भगवान की तो प्रकृति तो दिख रही है ना आपको, मुश्किल क्या है, लेकिन हम भी नहीं मान पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि सत्यव्रता के तो बड़ा आसान था, इतना बड़ा भगवान ने लीला किया, तो भगवान को तो स्वीकार करना आसान था ना उसको। एक तो चीज, ऐसी लीला भगवान सबको नहीं दिखाते, खाली शुद्ध भक्त को दिखाते। कि हमारे सामने भी ऐसे करते ना, इजी हो जाएगा कृष्ण को सरेंडर करना है। भगवान एक बहुत बड़ी समुद्र है, जाएंगे वहां लंबी मछली की नहीं, ऐसा नहीं है, आप नहीं स्वीकार कर पाओगे अगर आप भक्त नहीं हो, कुछ भी लीला भगवान करे। और भगवान अपनी जो अंतरंग लीला है सबके सामने नहीं करते। जैसे वामन का इतना बड़ा शरीर लिया था, तो शुद्ध भक्त ने ये सब रिकॉर्ड किया है ना, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? अब मत्स्य अवतार का लीला है और आप बोल रहे हैं नहीं है, क्यों डाउट कर रहे? तो रिकॉर्डेड है भाई, वेदव्यास जी ने रिकॉर्ड किया है। इतने बड़े बड़े महान शुद्ध भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का कोई पहेली सुना रहे हैं क्या, जैसे रात को सोते सुना? नहीं, वो सच बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था भगवान का लीला। अभी हमने इसके पहले वामन का लीला सुना, हुआ था। तो स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे दिल में है,
हमारे दिल में भी भगवान को रखने की जगह नहीं है, प्रॉब्लम उधर है। The problem is with us that we cannot handle the Lord's beautiful form in our heart. Problem is with us. कामस्य हित ज्ञान यजंत अन्य देवता, भगवद गीता में लिखा है, भगवान की चरण से हम चले जाते हैं जब हमारे दिल में काम प्रबल हो जाता है, चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक्चुअली, यजंत अन्य देवता। अगर आप किसी और चीज को शरण ले लिए, शरण तो लोगे, ये तो जीव का स्वभाव है, उसको तो शरण लेना ही है, लेकिन किधर शरण लेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन हिज प्योरिटी ऑफ द हार्ट। अगर दिल पवित्र है तो भगवान की शरण लेगा, लेकिन दिल में अगर काम विचलित करेगा तो भगवान की शरण में रहेगा भी नहीं, पकड़ नहीं पाएगा भगवान की शरण। प्रभु जी बोलते थे, जो रासिक तामसिक लोग हैं कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लें, भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भगवान के भक्त होने के लिए हमारा दिल पवित्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सत्यव्रता को इतना बड़ा भाग्य क्यों मिला, रेडी था। हम लोग भी रेडी नहीं है। भगवान हमारे सामने कोई अद्भुत लीला क्यों नहीं करते, करने के लिए वो तो रेडी हैं। वो तो अद्भुत लीला क्यों नहीं करते, वो तो करते ही रहते हैं। वैकुंठ जगत में हर क्षण भगवान अद्भुत लीला करते हैं और भक्त बहुत खुशी से उनकी लीला को देख के आनंद में हो जाते हैं। लेकिन इधर भी लीला करते हैं, भगवान की लीला है, सृष्टि भगवान की सबसे बड़ी लीला है। इसलिए पूरा सेकेंड कैंटो फर्स्ट कैंटो में इस चीज को समझाया गया है कि कृष्ण का सृष्टि को पहले देखो, वही भगवान की लीला है। अब आपको भगवान की लीला देखनी, पहले उसको समझो। भगवद गीता में भी कृष्ण जी बोलते हैं ना, क्या, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्य। मैं ही पानी का एक स्वाद हूं और मैं ही सूरज और चंद्रमा की किरण हूं। भगवान ये सब बोल रहे हैं। So how do we understand? No, in the beginning, that is the only way to understand. We cannot see Krishna now. We can see Krishna in his Leela as creation. तो पर्सनल लीला नहीं समझ सकते अभी, we are not ready. We can understand the Krishna's creation. That we can understand and that we can appreciate. When we understand the position of Krishna, जब कृष्ण का पोजीशन समझ आ जाएगा, तब कृष्ण की लीला में जा सकते हैं। कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को नहीं बोला, भाई जल्दी करो भाई, 7 दिन है, अब तुम क्या क्या सुना रहे हो सब, मेरे को ये सब इंटरेस्ट नहीं है। ये मस्ती लीला क्या, ये वामन लीला, बताओ ना कृष्ण की सुंदर लीला, राधा 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 कृष्ण की लीला, जल्दी करो। He is very patiently going and the disciple is also very mature. उसको भी स्वीकार है। जस्ट लाइक हम एक बहुत अच्छा इंस्टेंस लिए थे, जब विदुर जी घर से निकले थे, किसके घर से, धृतराष्ट्र के राजमहल से निकले थे, तो उसमें तो कृष्ण जी द्वारका में थे। He could have directly gone to Dwaraka, but he did not do so. What did he do? He did not go to Dwarka. What did he do? He went for तीर्थ यात्रा। तो प्रभुपाद से ऐसा क्यों, अभी तीर्थ यात्रा क्यों जा रहे, भगवान तो खुद है ना अभी। Because he felt he is not pure enough. Because of association of Dhritarashtra and Duryodhana, he felt I have become impure. Let me purify myself. So उसके लिए तो अलग है, but for us it is very true. We are actually not pure to see the Lord now. We are not ready. Therefore, we have to go through all this thing. Yeah, मत्स्य अवतार लीला, डेफिनेटली कृष्ण की लीला में बहुत ज्यादा आनंद है। इसमें तो ऐश्वर्य भाव है इतना। कृष्ण की लीला इज वेरी इंटीमेट, है ना, ऐश्वर्य भाव ना, मत्स्य भयंकर रूप, ऐश्वर्य भाव। कृष्ण की लीला में तो साक्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, इट्स वेरी वेरी स्वीट, बट वी आर नॉट रेडी। सो देयरफॉर वी शुड वेरी पेशेंटली, और ध्यान से पेशेंटली we should hear all these leelas and get purified, because it's for our purification. And the meditation is also there, the bona fide guru and bogus guru. हमारा तो फोकस है कृष्ण के चरण में जाना, तो उसके लिए हम देखते हैं कौन हमको मदद कर सकता है, ठीक है। सो वी नो कृष्णा कैन हेल्प अस, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट प्रोवाइडेड वी आर जेन्युइन, ठीक है। सो व्हेन वी नो somebody cannot help us, we ignore. The market of gurus दुनिया में बहुत है, लाखों करोड़ों लोग गुरु बने, आओ मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ।
थोड़ा बुद्धि चाहिए, कहाँ जाऊँ, किससे सीखूं? ये नहीं ये पॉपुलर है वो पॉपुलर, हमको क्या करना उससे? हमको बुद्धि चाहिए थोड़ा। हाँ, किधर जाना है, कौन हमको गाइड करे? जैसे टीवी खोलते हैं, हजारों लोग बोल रहे हैं कब 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 कब, हमको देखने का, किसको सुने? मेरे को तो कृष्ण के पास जाना है, कौन मेरे को मदद कर सकता है? तस्मात गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। मैं शास्त्र में लिखा है गुरु के पास तभी जाना चाहिए जब श्रेय उत्तमम, आपको यू वांट अल्टीमेट नॉलेज, देन ओनली यू गो टू गुरु, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट इन गोइंग टू गुरु? तस्मात गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाशयम। And what is the qualification of bona fide guru? शब्दे परे च निष्णात, he is fixed. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं he is representing Krishna. He is acting on behalf of Krishna. Therefore, he is given all the rest. Sakshat Haritvena is given all the respects. Just like ambassador को पूरा राजा का respect देते हैं. So similarly, Guru is given all the respects of Krishna. Okay? But we have to have inquiry. We should have eagerness to know about Krishna, eagerness to serve Krishna, and then the help will definitely come. The Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. Today translated did not come. Hare Krishna. उसका हाल क्या है देखो. The TV is on. I can. TV इसमें क्या प्रॉब्लम हो? कंप्लेन कर दी? Told I will put complaints. But whether it's done. Who? Oh, No. He was waiting for you. I sent him a message yesterday. प्रॉब्लम उसमें तो नहीं होगा, नीचे होगा ना Problem is lightning का problem. Lightning. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yes. Yeah, Prabhu, I have a question. Ah. This question is a very common question. Why I cannot see God? But this question sometimes is asked by a devotee, sometimes by a non-devotee, and sometimes by an atheist. So your answer should also depend on who is asking the question. So how exactly do we answer to all these three categories of persons? No voice, Prabhu. So we want to join a university, we need to be qualified. You need education, you need to be qualified. So we need a qualification to see God. First one. And then this is, in fact, there is a presentation why I cannot see God. Have you seen that? No, Prabhu. See what happens. There are some standard 10-15 ISKCON presentations, videos. Maybe I don't know when we can do that. We started doing that on Sunday evening, but then the program did not pick up. You know, Okay. we were doing a Sunday evening 6 o'clock. 6 to 8, we were making the presentations on soul, 18 reasons we are not body, we are soul. Have you seen that one? No, I've only seen the 27 techniques of mind control. Oh, 27. that became boring too many. Then I finally reduced it to 12 techniques. In colleges, students used to almost, one day I presented 27 techniques. Or professor said, you want to kill them or what? Why you are doing all this? Anyway, so, okay, you are saying what are the answers should be different. What are the different answers now?
For an atheist, what do you say? Yeah, that's what. So when atheists, some of my friends, they ask me, they don't believe in God. So at that point of time, I don't know. We can't preach to them because they are not even come to the level of having belief in God. So and if I ignore them, then they say that whatever you're doing, everything is an illusion. You don't have an answer to it. That's why you don't want to answer. Such things also they speak. So I don't know what would be a logical answer to